हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना स्वागत करती हूँ आप सब ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਪੈਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਪੀਐਸ ਸੈਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਰ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਨਸੈਪਟ PDFs ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ AG ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿ AG ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਅ ਸੀਕੁਐਂਸ in which each term is obtained by multiplying the corresponding terms of an arithmetic and a geometric progression is called an arithmetico-geometric sequence। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ sequence ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ obtain ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ corresponding terms of an arithmetic progression and geometric progression। arithmetic progression and geometric progression ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ obtain ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ arithmetico geometric sequence ਜਾਂ series। ਫॉर एग्जांपल ਇਸ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ AG ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਟਰਮ A, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ A + G × R, थर्ड है जी A + 2 × R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸੋ ਔਨ ਅਪ ਟੂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ AG ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ nth ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? nth ਟਰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AP ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ nth ਟਰਮ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ A + ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਇਸ nth ਟਰਮ ਦੇਖੀਏ A + n-1 × D ਨਾਲ ਕੀ R ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ n-1 ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੀ nth ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟਰਮਸ ਦਾ ਜੋ ਸਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ AG ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ द सम टू इनफिनिटी ऑफ द सीरीज़ दिती हुई है सानू AG सीरीज़ दिती हुई है। तो इसका इनफिनिटी टर्म्स का जो है असी सम फाइंड आउट करना है। सपोज कर लिया जो S इनफिनिटी है इस टर्म का जो इस सीरीज़ का जो है कि होएगा सम होएगा। हुण ये सानू पता किद्दां लग्गिया कि ये AG सीरीज़ है। हुण इस विच देखो 1 एक हो गई फर्स्ट टर्म, ऊपर है जी 2, फिर 3, फिर 4, तो ऊपर तो देखो नाल AP बन रही है, नाल की ने इत्थे 1/3 की पावर इत्थे लिख रही है 0 है, तो की बन रहा है 1/3, फिर 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/3 का क्यूब, नाल GP भी बन रही है। तो देखने तो ही आपां नूं पता लग जाया करेगा कि वो AG सीरीज़ है या किहड़ी सीरीज़ है। तो उन्हें AG सीरीज़ बन रही है तो की हुंदा AG सीरीज़ दे विच सम टू इनफिनिटी टर्म्स आपां किद्दां फाइंड आउट करदे हां? पहले तो सीरीज़ का सम असीं सपोज कर लिया S इनफिनिटी होएगा, फिर जो R आ रही है रेशो आ रही है कॉमन रेशो, उस दे नाल की करना है सीरीज़ नूं मल्टीप्लाई करना है। हुण इस दे विच रेशो किस दे नाल हो रहा है जो R है ते 1/3 नाल जो है कि हो रहा मल्टीप्लाई हो रहा हर स्टैप दे विच। रेशो कितनी है साडे कोले 1/3 है तो D कॉमन डिफरेंस किन्ना ऊपर देखो AP के टर्म्स के विच डिफरेंस किन्ना D 1, ठीक है। तो पहले 1/3 R है तो R नाल मल्टीप्लाई कर दो, की हो गया 1/3 × S इनफिनिटी। फिर की बन गया साडा जो टर्म्स है उसनों उन्हां दे ऊपर वाले टर्म्स के अकॉर्डिंग कोरसपोंडिंग ही लिखना है। जिस तरह 1 नूं जदों 1/3 नाल मल्टीप्लाई करोगे वो 1/3 बन जाएगा, तो इसनों 2/3 के नीचे लिख लो ताकि जो जो असीं इन्हां नूं सबट्रैक्ट करांगे ईजीली साडे तो सॉल्व हो जाए।
तो 2/3 तो यानी 1/3 बन जाएगा। इसनों जो 1/3 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 का स्केयर बन जाएगा, तो इसमें इससे नीचे लिख लिया। सिमिलरली जो इसनों 1/3 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो 3/3 की क्यूब बन जाएगा, तो उसमें इससे नीचे लिख लिया। प्लस सो ऑन अप टू ए सीरीज़ कितने तक चली जाएगी, इनफिनिटी तक चली जाएगी। दोनों सीरीज़ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ दो, सबट्रैक्ट कर दो। एस इनफिनिटी कॉमन 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 माइनस करोगे तो की बन जाएगा साढ़े कोले 2/3 एस इनफिनिटी बन जाएगा। ਹੁਣ की है जो है 1 तो एस सीरीज़ ही आ गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 1/3 कॉमन निकल जूगा, 2 - 1 की आ गया 1। सिमिलरली ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ टर्म्स चों की निकल जूगा कॉमन 1/3 का स्केयर, 3 चों 2 माइनस करोगे की आ गया साढ़े कोल 1 आ जाएगा। सिमिलरली इस की है 1/3 की क्यूब कॉमन आ जाएगा, 4 - 3 साडा की बन गया 1 बन गया। सो ऑन अप टू इनफिनिटी आ जाएगा। नैक्सट किदा ये की आ गया 1। ये बाकी टर्म्स के विचों हुण ध्यान नाल देखो की कॉमन निकल रहा 1/3 कॉमन निकल रहा है, तो बाकी की आ गया साढ़े कोले 1 + 1/3 + 1/3 का स्केयर प्लस सो ऑन अप टू इनफिनिटी चली जाएगी सीरीज़। हुण जे देखिए तो ये GP सीरीज़ बन गई। जदों असीं सबट्रैक्ट करते हैं तो साढ़े कोल एक चीज़ बन जाती हुंदी है, या तो GP बन जाती हुंदी है या AP किसी चीज़ बन जाती है जिसनूं असीं सॉल्व करन दा सानूं पता हुंदा भी की होएगा। तो ये GP सीरीज़ बन रही है, तो बस इनफिनिटी टर्म्स का जो GP का फार्मूला की हुंदा सी साडे कोल A/1 - R हुंदा सी। ए इत्थे साडे कोल किन्ना 1 वो लिखता, अपॉन 1 - R किन्ने इत्थे साडे कोल 1/3, तो 1/3 आ गया। सॉल्व करके साडे कोल इसकी वैल्यू की आ गई 3/2 वैल्यू आ गई। तो साडे कोल 2/3 एस इनफिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। कई बार असीं इत्थों ही जो है सम दस दिंदे भी ये 3/2 आंसर आ गया, बट ये गलत होएगा। ये वैल्यू साडे कोल किसकी आई है 2/3 एस इनफिनिटी की आई है। तो एस इनफिनिटी का सम फाइंड आउट करना सी इनफिनिटी टर्म का, तो की आ जाएगा इत्थों 9/4 आ जाएगा। तो इस तरह जो है असी AG सीरीज़ का सम इनफिनिटी टर्म्स तक की है फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण इसका एक फार्मूला डिस्कस करते हैं, सीधा ही एक फार्मूला है इसनूं सॉल्व करन दा। ये तो सीगा जे अगर सानू कोई सीरीज़ दित्ती हुंदी है उसनूं करन दा पूरा कंसैप्ट राहीं जदों असीं इसनूं सॉल्व करते हैं, बट इसका एक फार्मूला भी दिता जाता है। अगर तुसीं उस फार्मूले च भी पुट करके कर सकते हो, तुहाडे वो याद रह जाता, तो तुसीं उस फार्मूले नाल भी इस क्वेश्चन नूं कट कर सकते हो। की फार्मूला है सम ऑफ टर्म्स अप टू इनफिनिटी। अगर सानू एच सीरीज़ दिती हुई है तो उस इनफिनिटी टर्म्स का असीं सम फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला की है साडे कोले A/1 - R प्लस D/R अपॉन 1 - R का होल स्केयर। यानी पहला सानू A पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए एंड D पता होना चाहिए। तो बस की है असी इस फॉर्मूले लगा के की कर सकते हैं, सम सॉल्व कर सकते हैं। हुण A साडे कोल कितना 1 है, तो D कितना है ऊपर जो AP दी D की हुंदा साडे कोल कॉमन डिफरेंस हुंदा है, तो AP दी टर्म्स दे विचकार डिफरेंस कितना आ रहा है साडे कोल वो भी 1 आ रहा है, A भी साडे कोले 1 है, तो R साडे कोल कॉमन रेशो कितनी है 1/3 नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/3 की आ गई कॉमन रेशो आ गई। इसनूं जो है तुसी इस फार्मूले दे विच पुट करके देखो तां भी जो है तुहाडा एस इनफिनिटी की आएगा 9/4 ही आएगा। तो ये फार्मूला है, अगर तो तुहाडे ये फार्मूला याद होंदा तो तुसी फार्मूले राही कर सकते हो, अदरवाइज बाई कंसैप्ट मैथड भी कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है जी द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़। हुण सानू AG सीरीज़ दिती हुई है, असी n टर्म्स का फाइंड आउट करना है, सम किद्दां निकलेगा। पहला सीगा इनफिनिटी टर्म्स का, हुण हैगा n टर्म्स का। मैथड वही सेम ही रहेगा, बस n टर्म्स का असी फाइंड आउट करने। तो सपोज कर ले SN जो है n टर्म्स का सम है, तो की आ गया पहले ही सीरीज़ लिखती, तो n टर्म्स लिए जो लास्ट टर्म है वो की होएगी हुण ऊपर जो साडी बन रही है AP बन रही है 1 3 5 7, तो इसकी लास्ट टर्म केड़ी बन रही है 2n - 1। सिमिलरली पावर्स 2 दियां की नेगियां 2 दी पावर n - 1 जो है लास्ट से आ जाएगी। जनरल टर्म जो साडी है इसकी
ए वाली बन गई। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹੀ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਐਸ ਐਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 1/2 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ इस तो बाद की है फर्स्ट जो एस एन जो है उसनों 1/2 नाल मल्टीप्लाई किया तो की आ जाएगा इत्थे 1/2 बन जाएगा। तो इस दे नीचे लिखता 1/2। इसनों जदों करांगे 1/2 नाल मल्टीप्लाई तो की बन जाएगा 3/2 दा स्क्वायर। इसनों करांगे तो 5/2 क्यूब बन जाएगा, तो लिखता। जदों हुण इस तो पहला वाली जो टर्म होएगी उसनों करांगे तो वो किहड़ी होएगी 2n - 3 अपॉन 1/2 टू दी पावर n-2 होएगी। इस तो पहले वाली जो टर्म होएगी 2n - 3 इंटू दिस होएगी। इसनों जब 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो की बन जाएगा, नीचे 2 दी पावर n-1 बन जाएगा जो कि इससे नीचे आ जाएगा। तो जो ए वाली टर्म जो लास्ट वाली टर्म साढ़े को दिती हुई सी इसनों जदों असीं 2 नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नीचे है 1/2 नाल जो मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे पावर की साढ़े को की बन जाएगी 2 दी पावर n बन जाएगी। बस फिर इसनों हुण असीं सेम प्रोसीजर आई जिस तरह उस सबट्रैक्ट किया असीं उदा ही सबट्रैक्ट करांगे। तो सबट्रैक्टिंग बोथ दिस की बन गया साडा एस एन चो जो 1/2 एस एन माइनस करोगे की रह जाएगा 1/2 एस एन 1 एज इट इज़। इत्थों जो 1/2 कॉमन निकल जाएगा 3 - 1 की आ गया साढ़े कोल 2। सिमिलरली 1/2 स्केयर कॉमन 5 - 3 की आ गया साढ़े कोल 2। सिमिलरली 1/2 दी पावर 3 कॉमन 7 चो 5 माइनस करोगे की आ गया 2। सिमिलरली इन्हां दोनों दे विचों 1/2 दी पावर n-1 कॉमन इन्हां नूं जदों माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, ते इत्थे भी आ जाएगा सीधा माइनस ही आ जाएगा। तो इस तरह जो है असीं सबट्रैक्ट करता। हुण ये की बन गई, जदों इसनूं सॉल्व करोगे 2 नाल तो 2 कट, इत्थों एक 2 नाल एक 2 कट हो जाएगा, इत्थों एक 2 नाल एक 2 कट स्केयर बच जाएगा। तो इस तरह जो है हर एक टर्म के विच एक 2 कट जाएगा। तो पहला तो एज इट इज़ 1 इस तरह ही आ गया, ठीक है जी। इत्थे की बच गया साढ़े कोले 1, इत्थे रह गया 1/2, इत्थे रह गया 1/2 का स्केयर। हुण देखो जो ये इन्नियां टर्म्स सीगियां इत्थों तो लै गए इत्थे तक, ये तो सीगियां n टर्म्स, टोटल ये सीगियां n+1, ये इन्नियां की सीगियां n टर्म्स सीगियां। हुण असीं 1 अलग करता इन्नियां टर्म्स दे विच, तां किन्नियां रह जाणगियां n-1 टर्म्स रह जाणगियां क्योंकि ये वाली तो अलग ही है, तो एक असीं होर घट करती तो n-1 टर्म्स रह गईयां। हुण जे देखिए तो की बन गई साडी GP बन रही है। तो बस GP दियां n टर्म्स का सानूं फॉर्मूला पता है सम दा किद्दां हुंदा हैगा, की होएगा 1 तो एज इट इज़ प्लस a इंटू हुण इत्थे r जो है साडी आर जो है वो लैस दैन 1 है, तो की फार्मूला लगेगा 1 - r दी पावर n-1 क्योंकि n-1 टर्म्स ने अपॉन 1 - r यानी 1/2। बाकी ये टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगी। की बन गया साडा 1 प्लस जो नीचों 1/2 से ऊपर चला गया 2, वही मैंने ब्रैकेट दे विच मल्टीप्लाई करता 2 × 1 की बन जाएगा 2। इस सिमिलरली इस दे नाल जदों मल्टीप्लाई करोगे तो की बन जाएगा 1/2 दी पावर n-2। सिमिलरली ये स्टैप एज इट इज़। तो ये जो है साडा सम आ गया, बस इसनूं सॉल्व कर दो 2 + 1 की आ गया 3, बाकी एज इट इज़ लिखता। तो ये जो है सीरीज़ का सम आ गया किसका, n टर्म्स का सम आ जाएगा ए जी सीरीज़ का। तो इस तरह जो है असी सम n टर्म्स तक भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनफिनिटी टर्म्स तक भी। बाकी इसके कोरसपोंडिंग सानू होर सम्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सानू सम टू n इनफिनिटी टर्म्स का दिता हो सकता है, सानू ए या डी या आर की वैल्यू फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है, तो वो तुसी खुद सॉल्व करके देखने हैं सम। नैक्सट रिजल्ट्स हैं जी, कुछ रिजल्ट्स है जो पेपर्स दे विच जो है डिस्कस किए जाते हैं, इन्होंने एज इट इज़ ही तुसी याद रखना है कि सम ऑफ n टर्म n नैचुरल नंबर्स का जो सम है वो साडा उसका फॉर्मूला की हुंदा है n × n+1/2 हुंदा है। सिमिलरली n जो साढ़े को स्केयर्स दे विच जो नंबर ने 1 स्केयर + 2 स्केयर प्लस सो ऑन अप टू n स्केयर, तो स्केयर्स दे विच जदों नैचुरल नंबर्स होण तां उन्हां दे सम दा फार्मूला की हुंदा है n × n+1 × 2n + 1/6।
सिमिलरली जो क्यूब्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਮੇਸ਼ਨ n ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ n ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यानी कि ਇਹ ਟਰਮਸ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆ ਟਰਮ जो है ये जो सम है ये इस दे स्केयर दे इक्वल है देखो वही चीज़ ही बन रही है तो इस तो ही जो है रिजल्ट बनाया गया मेन सानू आ 3 रिजल्ट याद रखने ने तो ये रिजल्ट एज MCQ ही पेपर दे विच पूछा भी गया तो इन्हां रिजल्ट्स नू एज इट ही याद कर लेना। नैक्सट नोट है जी इफ Tn इज इक्वल टू दिस वन अगर सानू किसी सीरीज़ की कहते nth टर्म पता होवे तो उसका सम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर साढ़े कोल nth टर्म ये दी हुई है तो कॉन्स्टेंट का तो कोई फर्क नहीं पैंदा वही चीज़ रह जाती है बस जो सम करते हैं तो जो n वाले nth टर्म जो है उन्होंने अगे समेशन पै जाता तो की बन जाएगा ये समेशन n क्यूब प्लस b समेशन n स्क्वायर प्लस c समेशन n प्लस d इंटू n आ जाता है। अगर तुहानू वीडियो वधिया लग रही हो तो वीडियो नू लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट है क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ सानू सीरीज़ दी हुई है इसका जो है असी सम फाइंड आउट करना है सो हुण अप टू n टर्म्स का जो सम असी फाइंड आउट करना है। हुण अगर सानू इसकी nth टर्म पता होगी तो असी की कर लांगे सम फाइंड आउट कर लांगे तो पहले असी इसकी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। हुण ये सानू सीरीज़ किस टाइप की दी हुई है 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब दिता होया n टर्म्स का तो nth टर्म जो है की होएगी इसकी की बन जाएगी 2n माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगी तो की है Tn nth टर्म की आ जाएगी इसकी क्यूब का जो तुसी फॉर्मूला खोलोगे की बन गया 8n क्यूब माइनस 1 माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n तो nth टर्म जो है असी फाइंड आउट कर ली तो बस की है सीधा हुण असी Sn फाइंड आउट कर लेंगे उससे लिए की लग जाएगा समीशन लग जाएगा ऑल टर्म से आगे तो की बन जाएगा 8 समीशन n क्यूब माइनस n माइनस 12 समीशन n स्क्वायर प्लस 6 समीशन n तो की बन गया है n क्यूब का सानू फॉर्मूला पता है बस असी वो लगा दिता माइनस n माइनस 12 इंटू समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला भी हुणे असी डिस्कस किया प्लस समेशन n का फॉर्मूला लगा दिता बस बाकी तो अगे की है इसनू सॉल्व ही कर लेना है की बन जाएगा ये नीचे बन जाएगा जो ये 4 बन गया 2 दी पावर 2 करेंगे 4 इंटू 8 ते जाए 2 ते जाएगा तो 2 आ गया एक स्केयर्स अलग अलग करते माइनस n इतों जो है इसनू कट करांगे तो की बन जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 इतों जो कट करांगे तो ये 3 बन गया ठीक है जी। फिर इस तो बस स्केयर नू खोल लेना ये एज इट इज़ ही इन्होंने दोनों की कर देनी है मल्टीप्लाई प्लस 3n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा। नैक्सट की है n सारे चो कॉमन कर लिया सॉल्व करके जो साडा आंसर की आ गया n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरह जो है असी एक सीरीज़ की n टर्म्स जो सम फाइंड आउट करना होंगे तो पहले उसी nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं तो की बन जाएगा उस तो बाद असी Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होर क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़ सानू सीरीज़ दी हुई है हुण इसका n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है पहले असी nth टर्म फाइंड आउट करांगे तो nth टर्म फाइंड आउट करते हैं की बन रहा 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 तो जो nth टर्म होएगी वो की होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स का सम तो nth टर्म की होएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स तो इन्हों का सम किस दे इक्वल होएगा हुणे असी फॉर्मूला डिस्कस किया है कि नैचुरल नंबर का सम होंदा किस दे इक्वल होंदा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2 इंटू n स्क्वायर n जो अंदर ले गए n स्क्वायर प्लस 1 दे हुण nth टर्म आ गई साडे कोल ते असी Sn फाइंड आउट कर लांगे की बन जाएगा Sn इज इक्वल टू 1/2 समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n इसका फार्मूला लगाता है। सिमिलरली इधर भी फार्मूला लगाता n इंटू n अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 जो है कॉमन निकाला ना की बचेगा इतने 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस की आ जाएगा 1 इसनू सॉल्व किया की बन गया साढ़े को n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6 जो है
आ जाएगा। तो इस तरह जो है असी किसी सीरीज़ दे विच जदों n टर्म जो है फाइंड आउट करके की निकाल सकते हैं, सम उसका निकाल सकते हैं। नैक्सट जो है मैथड ऑफ डिफरेंसिस, कहते जदों जो लगातार वैन द सक्सैसिव डिफरेंसिस ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीरीज़ फॉर्म आइदर AP और GP, कहते जो डिफरेंसिस ने टर्म्स से सीरीज़ दिया टर्म्स से जो जाता AP भी बनान GP भी बनान दोनों बनान, तो उदों असी केड़ा मैथड यूज़ करते हैं सम फाइंड आउट करने लई, मैथड ऑफ डिफरेंसिस। हुण ये मैथड ऑफ डिफरेंसिस की है, असी बाय क्वेश्चन ही डिस्कस करांगे। तो हुण सीरीज़ की है साडे कोले सम ऑफ द सीरीज़ अप टू n टर्म्स का जो है असी सम फाइंड आउट करना। सीरीज़ सानू ये दी हुई है, हुणे देखो 3 7 4 ना तो AP ना ही GP विच मिक्सअप जिहा है, तो इस तरह जो AP भी बन रहे होन डिफरेंसिस GP भी बन रहे होन, तो इस तरह दिया जो सम्स है सीरीज़ का वो किस तरह निकालना बाय मैथड ऑफ डिफरेंसिस, उहदे लई असी की करांगे। तो सपोज कर लो n टर्म्स का जो सम है वो की होएगा SN होएगा, तो SN की होएगा इन्हां सारियां दा सम, ते लास्ट टर्म इसकी केड़ी होएगी TN होएगी, nth टर्म होएगी। उस तो बाद SN नू अगेन लिख लो, किद्दां लिखना है, एक टर्म जो है पिछे करके लिखनी है, जो फर्स्ट टर्म जो ले उसकी स्पेस छोड़ देनी है, जिस तरह असी पिछले क्वेश्चन च कीता सी। जो है टर्म्स इस तरह लिखनी ने, स्टार्टिंग इस तो करनी हैगी, एक टर्म तो बाद करनी है, तो की कर लेनी है 3 लिखनी शुरू तो ही है, तो 3 इसके नीचे आ जाएगी, फिर 7, फिर वही 14, फिर 24 37 उस अगे आएगी। तो TN के नीचे केड़ी आएगी उस तो एक पिछले, यानी कि TN -1 वाली, तो TN जो है उस तो अगे चली जाएगी। तो इन्हों 1 और 2 मार्क कर लो। नैक्सट की करना, फिर इन्हों दोनों की कर देना सीरीज़ नू सबट्रैक्ट कर देना, तो 3 तो की आ जाएगा ऐसे, फिर SN चो SN माइनस करांगे 0 बन जाएगा, 7 चो 3 माइनस किया 4, 14 चो 7 एंड इस चो 10 आ जाएगा, फिर 13, फिर TN चो n माइनस करांगे वो ये भी एक डिफरेंस बन जाएगा। तो n टर्म्स का जो है डिफरेंस आ गया, बट तो इतों जो माइनस करांगे की आ गया TN आ जाएगा। हुण देखो इतों जो है TN माइनस आ गया, इधर 0 है, ये माइनस है तो उधर जाके की हो गया प्लस, तो nth टर्म जो है इतों साड़ी आ जाएगी। फिर असी की करांगे जो है SN जो है फाइंड आउट कर लांगे, तो की बन गई साडे कोल ये 3 प्लस आ चीज़ जो है ये वाली बन गई। देखो इत्थे तक साडे कोल की ने n टर्म्स ने, 3 अलग कर ली तो किन्नियां रह गई n-1 टर्म्स रह गई। हुण इस सीरीज़ नूं ध्यान नाल देखो ये की बन रही है, AP बन रही है। देखो इन्हां दा डिफरेंस की है साडे कोल 3, इन्हां दा डिफरेंस भी 3, सब दा डिफरेंस सेम 3 आ रहा है, तो AP बन रही है। इत्थे साडे कोल AP भी बन सकती है, GP भी बन सकती है, उस अकॉर्डिंग जो भी सीरीज़ बनेगी उस अकॉर्डिंग जो है असीं इसका सम फाइंड आउट करांगे। हुण AP बन रही है तो AP दे सम का फार्मूला लगा देना कि n-1 टर्म्स ने, तो की फार्मूला आंदा है n-1/2 प्लस 2a किन्ना साडे कोल 4 प्लस n-1 तो जो डिफरेंस है वो किन्ना 3 है। जो सॉल्व करके जो है इसनों ये चीज़ बन जाएगी, तो एलसीएम ले लिया 1, जो 2 एलसीएम ले लिया, सॉल्व किया तो की बन गई साडे कोले 1/2 इंटू 3n स्केयर माइनस n प्लस 4। ये पर की आई है साडी हले nth टर्म आई है, बट असी तो सम फाइंड आउट करना n टर्म्स आ, बस वो मैथड पिछले वाला ही लगाना है कि जो सानू n टर्म पता हो तो SN की कर देंगे असी समीशन लगा देंगे होंगे। तो बस समीशन लगा देना 3 इंटू समीशन n स्केयर माइनस समीशन n प्लस 4 की बन जाएगा n बन जाएगा। तो इन्हों के फार्मूले सानू पता नहीं, तो असी इत्थे पुट कर देंगे। बाद की करना है एलसीएम ले लेना एंड सब दे विचों की है n की कढ़ लिया, कॉमन कर लिया, तो जो इसनों सॉल्व करांगे तो साडा की बन जाएगा n/2 इंटू n स्केयर प्लस n प्लस 4। आई होप तुहानू ये वीडियो जरूर पसंद आई होएगी। अगर तुहानू वीडियो वधिया लगी होवे तो वीडियो नू वध तो वध लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। इस तरह दी वीडियोज़ असीं तुहाडे नाल अगे तो भी शेयर करते रहांगे। वीडियो नू देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।